ये वाला मैम ये ब्यूटीफुल तो मैम वो होगा ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटीफुल तो नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, क्योंकि सोचो, पढ़ो इस सेंटेंस को एंड टेल मी वेदर इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और समथिंग एल्स। बाकी लोग बाकी लोग भी। मैम हाँ, मैम अगर वो आई की जगह किसी का नाम होगा तो सही रहेगा मैम। तो भी नहीं होगा। किसी का नाम होने से क्या होता है? आई भी कॉन्क्रीट नाउन है। मुनीश लिखा हो उसकी जगह, वो भी कॉन्क्रीट नाउन है। सनसेट भी कॉन्क्रीट नाउन है, हम उसको देख पाते हैं। तो ब्यूटीफुल क्या है? हु कैन टेल मी? यस, निधि, टेल मी व्हाट इज मैम ब्यूटीफुल? कॉन्क्रीट नाउन। नो, ब्यूटीफुल। Yes, Anjali or Nilesh, tell me what is beautiful here. Mute yourself. एडजेक्टिव। Yes, it is an adjective. It is describing the sunset. What was the sunset like? It was beautiful. So this, but we had to write a sentence which had an abstract noun and a concrete noun. So I saw beautiful sunset near. I saw beauty in the sunset. Or I saw beauty in the sun setting over the mountains. Okay? Then that beauty will become an abstract noun. So everybody, you've all written this. Meri galti hai. That day, I think I missed it. We have to say, I'll just write it, and you all can also correct it in your notebooks. 1 second. So I saw. Tell me the sentence, Munish. What should be the sentence now? यस मैम। बताओ क्या होना चाहिए सेंटेंस? आई सो द ब्यूटी ऑफ सनसेट ओवर द माउंटेन। ऑफ द सन सेटिंग ओवर द माउंटेन्स। सन सेट कर रहा था, उसकी ब्यूटी मैंने देखी, तो सन सेटिंग ओवर द माउंटेन्स। ओके, ओके मैम। हाँ, तो ये मेरे को थोड़ा सा लगा था। बाकी सारे सेंटेंसेस आर ओके, व्हाट वी हैड डन। ओनली इन दिस केस, आई while I was going through someone's work, I realized ये तो गलत हमने पढ़ लिया है. Sorry children, that's my mistake. But एक और चीज़ जो मेरे को, Anjali and Nilesh have attempted to write the answer. बाकियों ने भी शायद ट्राई किया. Create your at least one abstract and one concrete. This we had done. What do you think? Why do you think it is important to understand the difference between abstract and concrete nouns? Write a few sentences about your thoughts. तो नीलेश, अंजलि ने तो कुछ लिख के भेजा है. I want others to tell me. हाँ, इसका आंसर बताओ. लेट्स स्टार्ट विद निधि. निधि बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए. बोलो बोलो. रीड द क्वेश्चन अगेन एंड देन गिव मी द आंसर. Then we'll move on to the next topic today, but this I want to complete first. Write three sentences uses at last on abstract noun and one concrete noun. नहीं, ये तो हमने क्लास में करा था उस दिन. I want you to read the next question. Why do you think it is important to understanding the difference between abstract and concrete noun? Write a few sentences about your thoughts. हाँ, तो क्या मतलब हुआ? क्या करना है इसमें? मैम कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के डिफरेंसेस ढूंढने नहीं, और उन कह रहे वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ढूंढने उनके नहीं, डिफरेंसेस को समझते हैं और समझना है. उनके हाँ, कुछ क्वेश्चन बनाने हैं. नहीं, क्वेश्चन नहीं सेंटेंसेस बनाने. सेंटेंसेस नहीं, पढ़ो फिर से क्वेश्चन.
फिर से पढ़ो क्वेश्चन निधि. Why why do you think it is important to understand the differences between abstract and concrete nouns? Write a few sentences about your thoughts. हाँ, तो सेंटेंसेस उन पे नहीं बनाने, इस चीज़ के सेंटेंस आपने लिखने हैं कि क्यों आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि हम समझें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कॉन्क्रीट नाउन्स में डिफरेंसेस. सो व्हाट इज़ योर thought on that? This is the sentence that I was telling. This you need to correct, everybody, in your notebooks. मैम मैं भी बताऊँ? हाँ बताओ प्लीज़. अभी तो उसने बताया ही नहीं, अभी तो वो सोच ही रही है. आप बताओ. 1 second. Understanding the difference abstract and concrete noun is important क्लास चल रही है बच्चा. because it helps us to communicate more clearly. Abstract noun teach us abstract nouns means feeling and ideas, while concrete noun means things that we can see and touch. Knowing about these concepts, it helps us to communicate. Communicate well. Yes. So if we know the difference between them and we have to talk about a feeling, we know how to use an abstract noun. Like we've written this sentence here, I saw beauty in the sun setting over the mountains. Right? So the sun is the concrete noun, I is the pronoun, and which is the abstract noun? Beauty. So I have been able to communicate. मैं बता पा रहा हूँ कि अच्छा मैंने देखा था कितना सुंदर था जो सनसेट हो रहा था. Okay, so we are able to communicate better. Absolutely right. Who else can attempt? Mute yourself. No. मैम मैं ट्राई कर सकता हूँ. Yes, please try. Understanding this difference helps us to be more clear in our writing And speaking also. and speaking. Hmm. Concrete nouns refer to things we can experience with our senses. See, hear, touch, smell, or taste. Like table song or flower. Abstract noun refers to idea. Ideas. What else? Or that we can't physically interact with, such as happiness, justice. Yeah, so those are emotions. So abstract nouns help us, are the ones which we can refer to when we are talking about our emotions, when we are talking about events, we are talking about our state, right? What else? Yes, sir. Good. बस अभी मैम इतना. Very good. लिख के भेजते तो बहुत मज़ा आता. आपके आया ही नहीं कुछ काम. Never mind. मैम मैं सच बता रहा हूँ. मैं लिख रखा हूँ. मैं I can understand. मैं मान रही हूँ आपकी बात पे. I trust you. Don't worry. हाँ. मैम बट वो मैम मैंने अपलोड किया है मैम, और इधर से दिखा रहा है कि आपने अपनी अटैचमेंट वो डाल रखी है, बट मैम आपके पास नहीं दिखा रहा हूँ. कोई बात नहीं. जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, you can send it to me on WhatsApp. Okay? Next time if you face this problem. अटैचमेंट में हो चुकी है, इसलिए मैंने नहीं भेजा. हाँ. Never mind. मैम Never. मैं आपको आज भेज दूँगा. Never mind. Doesn't matter. Yes, Nilesh, you tell me what have you written about this question as an answer to this question. We should hear everybody out. And Nidhi, you should also understand. I'll end में आपसे पूछूंगी, and Khushbu also. Yes, Nilesh. Yes, ma'am. हाँ, read out what you have written as the answer. Read it. It is important to understand the difference between abstract and concrete noun, because abstract noun
help in express our feelings Expressing our help in expressing our feelings, huh? more better. More better, better. It now is बेटे बात सुनो. मोर बेटर, मोर हम तब यूज़ करते हैं जब हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हों जिसके सिलेबल ज़्यादा हों, है ना, एक से ज़्यादा हो. अब बेटर तो खुद ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. सो दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस बेटर. आगे. while concrete noun is a noun who can हु नहीं, हु तो इंसान के लिए बोलते हैं. दैट कैन. you can express or detach our thoughts. और while concrete nouns are the nouns about which we can express our thoughts. For example, I can say this is a nice phone. Okay? So we can express our thoughts about the concrete nouns. But the abstract nouns are nouns which actually indicate our thoughts. They are the names that we give to our thoughts, like anger, happiness. Okay? Okay, good. Anjali, what had you written? You also read yours. Then Nidhi, I'll come to you and to Khushbu and then finally to... Good evening, ma'am. Good evening. As usual, you are late, but wait. अभी आपकी टर्न आने वाली है. हाँ. Yes. It Anjali. is important to understand the difference between abstract and concrete nouns because abstract nouns help in expressing our idea feelings better and concrete nouns help us in talking about things see, use, see or touch. They both help in expressing our thought better. Very good. They both help in expressing our thoughts better, or in better communication, or in clearer writing and speaking also. Okay. Now, Nidhi, your turn. Let me see what you will answer. Concrete noun refers to a physically object Refers to physical objects. Yeah. in the real world, such as a dog, a ball, Etc. an abstract noun refers to an ideas, events, or like or abstract noun cannot be touched like freedom, sand, etc. Good. Good attempt. Yes, Khushbu, your turn. So ultimately, final sentence सबका ये होना चाहिए कि understanding the difference between them, we can express our thoughts better. Okay? Last sentence should be this. Yes, Khushbu, your turn. Yes, ma'am. हाँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जैसे इन्होंने बताया. Why is it important to understand the difference between abstract and concrete nouns? I'm waiting. Unmute yourself and answer जैसे बाकी सब ने आंसर दिया. You want to see the question? This is the question. It is important. Why is it important to understand the difference between abstract and concrete? Write a few sentences about your thoughts. हाँ. बोलो. Did you try attempting it?
खुशबू? No, ma'am. Okay, now attempt. Never mind. कोई बात नहीं. Hmm. Why is it important to understand what an abstract noun is, what a concrete noun is? बोलो. मैम जो सेंटेंस है उसमें एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन है वो मतलब कि जो आपके थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए. क्या मतलब हुआ उसका? उनका डिफरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है हमें मालूम हो, ताकि हमें मालूम हो अगर हम फीलिंग की बात कर रहे हैं, इवेंट की बात कर रहे हैं, तो हम किसी ऐसी चीज़ के नाम की बात कर रहे हैं जो कि हम अपने सेंसेस से नहीं देख सकते, उनको फील नहीं कर सकते सेंसेस से. जब हाँ, Yes, ma'am. और जो कॉन्क्रीट नाउन्स हैं उनको हम कर सकते हैं. तो इफ़ वी नो द डिफरेंस देन वी विल अकॉर्डिंगली be able to write and speak better. Like we said, I saw the beauty of the sun setting over the mountains. So, when I'm talking about something beautiful and I want to express that, I have been able to express it using an abstract noun. Otherwise, I could have just said it is a beautiful sunset. But when you want to express your feeling about it, then you use the word beauty, which is an abstract noun, which you cannot feel. Beautiful sunset mein, we were just describing the sunset. When we talk about beauty, we are talking about how we felt when we saw the beautiful sunset. Okay? Do you all understand this? तो जब हम when we know which words to use, then we'll be able to express ourselves better. Okay? इसको लिख के मेरे को चाहे व्हाट्सएप पे ही भेजना इस आंसर को. You have to write it in English and send it to me. Now, Vishal, it's your turn. You tell me. Yes, Vishal, unmute yourself. Let's not waste time. We have to go. We have to start another topic today. Answer this question. Everybody has given their thoughts. I have also given my thoughts. So now you also give your thoughts. Yes, Vishal. I can't hear you. I know your mic is unmuted, but I can't hear you. जोर से बोलो. गुड इवनिंग मैम तो बहुत ज़ोर से निकला था, अब क्यों नहीं निकल रही है आवाज़? हाँ, जल्दी से बोलो बेटा. कम. No, that we know. I'm not asking what abstract nouns are and I'm saying why is it important to know the difference between them. एक सिंपल सेंटेंस में बोल दो चलो. Some nouns are abstract and concrete. It be important to know because that we can feel only, and other nouns are abstract. नहीं बेटे, आपको समझ नहीं आया, हिंदी में समझाओ. क्यों ज़रूरी है इनका डिफरेंस बताओ ना. क्यों पता होना चाहिए? क्यों पता होना चाहिए? वाई? आदर्श, फिर से बताओ. वाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्यों पता होना चाहिए? Understanding these difference between abstract, मैंने अपना ऊपर लिख लिया है. हाँ. Understanding between abstract and concrete noun is important because it helps us to communicate more clearly. Abstract noun express feelings and ideas, while concrete noun say about things that we can see and touch. Knowing both types of nouns help us to describe our thoughts and emphasize our thought more clearly.
वेरी गुड. समझ आया विशाल? Okay, now you tell me that. हाँ, now बोलो. Now you tell me the answer. तो मेन इसका थीम क्या है? ताकि हम एक्सप्रेस प्रॉपरली कर सकें, हम ठीक से कम्युनिकेट कर पाएँ, हम अच्छे से लिख पाएँ, हम अच्छे से बोल पाएँ. मेन पर्पस वो है इसका, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम. ओके. अगर हम किसी फीलिंग की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि फीलिंग को हमने किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से करना है, ना कि किसी एडजेक्टिव से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ना ही हम किसी कॉन्क्रीट नाउन से उसको कर सकते हैं. ओके. इवेंट्स हैं, इवेंट्स को हम पार्टी बोल रहे हैं, हम पार्टी को ये नहीं बोल सकते कि वी हैव टू यूज द वर्ड पार्टी टू से विच इज मेड. सो वी कैन नॉट से कि ओके आई वेंट to a place where I saw people dancing, people having food, cake, cutting the cake, wearing nice clothes. ये सब concrete nouns हैं. So I cannot just, if I just say party, all these things will automatically come into my mind. Okay, then you might go on to describe them using adjectives, the concrete nouns. But just saying the word party means all these things come to my mind automatically. So whenever I say I went to a party, all these things automatically come in front of me, and it is so clearly and neatly expressed. Now when I start expressing, people were dancing, people were singing, people were eating, people were talking, you have to give a word to all that. So the word given to that is a party. So you are able to express better in a simple way. Okay? हाँ, सबके लिए है ये. It's not just for you, everybody. Okay? You can give these examples also. Chalo, well done. Now, what I want to do is ask all of you what pronouns are. Okay? So this was one sentence जो हमने पिछले काम में गलत किया था, उसको मैंने करेक्ट किया. खुशबू और विशाल, प्लीज़ नोट. I saw a beautiful sunset में beautiful is describing the sunset, so it is an adjective. I saw beauty in the sun setting over the mountains is showing my emotion, my feeling of wonderment. Okay? So beauty is the abstract noun. Now, who can tell me what a pronoun is? Raise your hands and then we'll discuss it today. और कुछ नहीं करूँगी अभी. आज पहले डिस्कस करते हैं प्रोनाउन क्या होता है. ओके, लेट मी आस्क विशाल ओनली. विशाल, बता सकते हो what are pronouns? Yes, ma'am. हाँ. Pronouns for the non-singular. In English, can you try answering in English, Vishal? Now you're slowly moving on to bigger and bigger classes. I want you to answer in English. What are pronouns? You have to start making sentences. If you don't start making sentences now, you will never learn English. Tell me. What are pronouns? A word that we can replace by a name. उल्टा बोल रहे हो. Think again. I'll just get water for myself. Think again and make the sentence properly. I'll write the sentence for you. Think again. Yes, Vishal, ready?
टेल मी, अगर टेल वेट बेटे, आप तो बताओगे, मुझे मालूम है जिन्होंने भी रेज हैंड किया दे विल बी एबल टू टेल, आई नो दैट. यस विशाल बोलो. That Words that we can replace from name. words that we can replace. आगे Yes, from name. a name. Okay. Okay. Mute yourself. Yes, Shubham. शुभम कह रही हूँ. मुनीश, can you correct this sentence? Correct this sentence. I don't want a new definition. I want you to correct this sentence. Words that, in English can you answer? Words that we can replace a noun. अच्छा मैं यही लिख देती हूँ. Now I'll ask Anjali, can you correct this sentence further? Anjali or Nilesh? Yes, words that words अच्छा words that in place of noun तो replace ही हुआ. अब इस sentence को replace के साथ correct करो. विशाल, mute yourself. Mute yourself, विशाल. हाँ बोलो. Ma'am, pronoun are the words that we can replace from a noun to pronoun. ओके किसी ने भी अभी तक करेक्ट 100% नहीं बोला. दैट वी कैन, आपने क्या बोला? वर्ड्स दैट वी, एक मिनट वेट. व्हाट डिड यू से आदर्श? वर्ड्स दैट वी कैन, The words that we can replace from noun to noun. अच्छा आप बोल रहे हो रिप्लेस फ्रॉम नाउन टू प्रोनाउन. नाउन की जगह आपने बोला फ्रॉम नाउन. फ्रॉम नाउन टू प्रोनाउन. प्रोनाउन तो हाँ चलो. यस Pronoun are the words which we can replace with a noun. with a noun. From a noun. Simple. Sorry. हाँ सब लोग म्यूट करो. हाँ मैम आपका एक मैम नहीं, इसी सेंटेंस को करेक्ट करने को बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू थिंक. यस निधि टेल मी. इसी सेंटेंस को करेक्ट करो. इसमें आई नो दैट विशाल ऑल्सो नोज द आंसर, यू ऑल ऑल्सो नो द आंसर, बट यू हैव टू गिव मी द, ही मेड अ सेंटेंस which was not, which gave me an idea that he knows the answer, but he has not been able to make the sentence properly, and my idea is to help you make sentences correctly. Yes Nidhi, you tell me. Huh. Nidhi has raised her hand. फिर से बोलो, क्या बोला? जोर से बोलो. Words words are specific things from people and place. mute. Yes, tell, you mute yourself Nidhi. Yes, you tell. Ma'am, words that we use in place of a noun. Of a noun, from a noun, of a noun. करेक्ट preposition यूज नहीं हो रहा है. लेट मी गिव यू अ हिंट. यस
मुनीश, आपका अभी भी हैंड रेज्ड है, फिर से बोलो. खुशबू, ट्राई. वर्ड्स दैट. Ma'am, pronouns are the words which we can replace noun with. Thank you. Very good. So, words that we can replace noun with. तो मैंने आप ही का सेंटेंस. मैम, आप जिसके लिए वो आप ऐसे बोल रही हैं. हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा था, तो करेक्ट ही नहीं हो रहा था. जब तक आप ये विद नहीं लगाओगे तब तक करेक्ट होगा ही नहीं सेंटेंस. वर्ड्स that we can replace noun with are called pronouns. ओके, या हम एक और Yes, ma'am. अब सिंपल सी एक और बताती हूँ. वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ nouns are called pronouns. मैम, बट आपने तो बोला था कि मैम उसी सेंटेंस को ठीक हाँ, ये तो मैं अब अलग बता रही हूँ. उसी को ठीक करना था, वो आपने फाइनली ठीक किया. हाँ बिल्कुल, वो ही ठीक करना चाह रही थी मैं, बिकॉज मैं देखना चाह रही थी कि आप लोगों को कितना सेंटेंस फॉर्मेशन आ रहा है. तो मेरी तो टाइम फिस हुए जा रही है कि किसी को नहीं आ रहा था. फाइनली समहाउ मुनीश एडेड द विद. उसी सेंटेंस को अगर हम वैसे भी करते, उसी सेंटेंस को मैं देखो अभी और एक और तरीके से उस सेंटेंस को करती हूँ. ये तो मैंने इन प्लेस ऑफ नाउन लिखा है, इसको हटा इधर ही. वर्ड्स दैट वी कैन रिप्लेस की जगह दैट रिप्लेस nouns, बस इतना भी बोलेंगे, are called pronouns. मैम, मैं एक एग्जांपल बताऊं. नहीं, एग्जाम्पल्स तो अभी मैं बहुत सारे पूछूंगी, जस्ट वेट. पहले ये सेंटेंस फॉर्मेशन देखो. वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. उसी सेंटेंस को किया, वी कैन हटा दिया. खुशबू, विशाल, अंजलि, नीलेश, निधि, एवरीबडी. समझ आया? सेंटेंस फॉर्म करना है. क्या करना है हमने? पहले सब्जेक्ट लिया हमने. सब्जेक्ट क्या लिया? वर्ड्स. कौन से वर्ड्स? जो रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो वर्ब आ गया. किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट, नाउन को. उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस. या हम सीधा ही बोलते हैं प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, या words that replace nouns are called pronouns. हम basically the subject is pronouns, है ना, और ये words pronouns को ही रेफर कर रहा है. ओके, ये समझ आया सबको? Everybody has understood this or not? Yes, ma'am. Yes. आदर्श? Yes, sir. हाँ, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है. जस्ट कीप इट सिंपल. नाउ who will tell me what are the different types of pronouns? तो एक मिनट, wait, I don't want to be, मैं पहले खुशबू से पूछ रही हूँ. खुशबू बताओ, कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते? कौन से प्रोनाउंस आपको मालूम है? which are the pronouns that you are aware of? No, मुनीश, you mute yourself. हाँ, खुशबू अनम्यूट. आपको मालूम है ना प्रोनाउन क्या होते हैं? समझ आया? अनम्यूट बेटे. खुशबू. ओके, निधि विल टेल मी. निधि, do you know how many types of pronouns? Wait, Adarsh, I'll come to you also. Nidhi, Nidhi, Yes, ma'am. do you know how many types of pronouns there are? We talked about nouns. कितने types के nouns किए हमने, मगर pronouns कितने type के होते हैं? कुछ मालूम है? I know, ma'am. Which ones? Tell me. Very good. हाँ, give me the names only first. Yes, you know, then tell me.
आई नो मैम से सिर्फ नहीं काम चलेगा ना बेटे. अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी द नेम्स. Do you remember? If you have forgotten, say, ma'am, I don't remember. Nidhi, Yes, ma'am. do you remember? बोलो फिर. अगर नहीं याद है बोल. Okay, mute. Mute. Yes, Adarsh, you tell me. Yes, ma'am. Personal pronouns, relative pronouns, Wait, personal. मेरे को लिखने दो. Personal और क्या बोला? Relative. हाँ. और interrogative, interrogative, reflexive, reflexive. सब लोग लिखते जाओ ये सब चीज जो भी लिख रही हो. Demonstrative. ओके. डेमोन्स्ट्रेटिव. possessive, indefinite, डेमोन्स्ट्रेटिव. distributive, इंडेफिनिट. distributive, डिस्ट्रीब्यूटिव. हाँ. मैम स्पेलिंग करते रहो. EMPHACIC. एम्फेटिक. एम्फेटिक या इंटेंसिव भी बोलते हैं. ओके. अभी म्यूट करो. नाउ Munish, tell me what are personal nouns? Ma'am, personal pronouns are used for a person, a specific person Rep- or place. used for replacing persons. हाँ. Specific person होगा. ओके, मैं स्पेसिफिक पर्सन लिख देती हूँ. जो आप बोलोगे, मैं कुछ नहीं बताती हूँ, सब आप लोग ही बताते हो. हाँ. वेरी गुड. हाँ, आगे. एग्जाम्पल. मैम इसमें मैं कंफर्म नहीं है. मैम एग्जांपल मैम शिवम इज अ बॉय. ही प्लेज क्रिकेट. सो मैम ही प्रोनाउन. he is the pronoun. Very good. He, she, we, right? They. Yes ma'am. हाँ, ये सब है. Okay. Now, Anjali, can you tell me what relative pronoun is? यानी किसी. अच्छा, किसको सारे nouns की definition आती है? तो रेज हैंड करो. मैम मुझे सबकी आती है. एक की हो. अच्छा, चलो एक की तो अभी करनी पड़ेगी रिवाइज पे. ठीक है. बाकी सबको आती है या नहीं आती? ये पता है कि क्या होते हैं ये इतने सारे प्रोनाउंस मैम भी? पता है मैम, बट 2-3 मैम नहीं आता मैम मेरे. अच्छा, कोई बात नहीं, म्यूट करो. तो मैं अभी क्या करती हूँ, आई विल शो यू ऑल अ वीडियो which will be talking about all these nouns. ये ठीक है? तो सब thumbs up दो. और सब नोट करेंगे. ओके. और समझेंगे और फिर समझ के फिर मैं सारे इकट्ठे करा रही हूँ ताकि फिर मैं एक मिक्स्ड वर्कशीट दूंगी नेक्स्ट टाइम जिसमें मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूँगी. दूसरा काम क्या होगा कि मैं आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने के लिए बोलूँगी यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. मैं सेंटेंसेस बना के दे दूँगी, आप उसमें से रट के अंडरलाइन कर लोगे सारे प्रोनाउंस. बट मैं चाहूँगी फिर आप सेंटेंसेस बनाओ यूजिंग देम. इज दैट फेयर? यस मैम. यस एवरीबडी. ओके. सो बनाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको सेंटेंसेस. ओके. सो वील जस्ट रन द वीडियो नाउ. वील गो थ्रू ऑल द pronouns
we'll have some examples also. You can keep noting down the examples, and then next time will be, और समझना अच्छे से, समझोगे तभी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कर पाओगे काम. ठीक है खुशबू? खुशबू ठीक है? पक्का? You have to start writing sentences yourself, खुशबू. जब तक खुद नहीं लिखोगे तब तक नहीं आएगा. तो वो वाले क्वेश्चन का आंसर तो लिख के भेज ही देना पहले. ओके? So now let's see whether we missed out on any pronoun. Hello everyone, I am Vani. Welcome to my channel E for English. Today we will study pronoun, its types with examples. So keep on watching this video till the end. Pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun. देखो अब क्या बोल रहे हैं, used instead of a noun. So this is also another way of writing the same thing. A pronoun is a word used to replace a noun, used instead of a noun, used in place of a noun. Okay? तो सेम चीज़ हम अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, and it's just that the sentence formation has to be correct. Noun वो वर्ड है जो नाउन की जगह यूज, एपिटेशन ऑफ हरी. अब आई वॉन्ट कि कौन आया था, नीलेश, रीड दिस सेंटेंस. रीड दिस सेंटेंस. For example, hurry is about because hurry is. फिर से पढ़ो. Hurry is absent because hurry is ill. हाँ. So what have we done? We have reused the word. Which noun have we reused? Hurry. Hurry. So we can replace hurry by what? हाँ. So what will the sentence become? फिर से पूरा सेंटेंस बोलो with just one hurry. नहीं, पर एक हरी तो बोलोगे. कौन एब्सेंट है, कौन इल है? देखो देखो ये वेरी गुड. अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ. व्हेन वी से, एक सेंटेंस हमने बोला हरी इज एब्सेंट बिकॉज he is ill. Okay? Now इसमें क्या है? Who is ill? ये सब हाँ, who is ill? Hari. हाँ, so Hari is ill. Hari की जगह हमने he use किया. Now I'll say, and who is absent? एक तो हरी इज इल एंड हु इज एब्सेंट? वेरी गुड. तो दोनों चीज़ें एक ही को बात कर. मैं अब ऐसे लिख रही हूँ, ही इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल. इफ आई राइट दिस सेंटेंस, इसमें किसकी बात हो रही है? ये ही किसको कर रहा है? ही है, वो किसी और के बारे में बता रहा है. हाँ, वो एब्सेंट है क्योंकि हरी बीमार है. हो सकता है उसके फादर हों. ओके? तो यहाँ पे ये ही हरी के लिए नहीं यूज हुआ है. ऊपर वाले सेंटेंस ही इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल. वो एब्सेंट है क्योंकि हरी बीमार है. या शी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल, मतलब वो एब्सेंट है क्योंकि हरी बीमार है. तो उसका ख्याल रखने के लिए वो एब्सेंट हुआ है. फर्स्ट सेंटेंस में हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, मतलब हरी ही दोनों के लिए. हरी एब्सेंट है क्योंकि वो ही बीमार है.
दूसरे सेंटेंस में 2 जनों की बात हो रही है, मगर फिर भी हमने एक जने के लिए ही यूज किया हुआ है। ओके, ये समझ आया सबको? समझ आया? तो हमेशा यही नहीं सोच लेना कि वही होगा। प्रॉपरली सेंटेंस को समझना है और फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, फॉर विच नाउन वी हैव यूज्ड द प्रोनाउन। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो। ओके, सो दे आर सेइंग इट इज़ बेटर टू अवॉइड रेपिटेशन। फिर इन्होंने ये बताया। अब इसमें से कौन सा वाला हमारा नाउन रह गया था? पढ़ो सारे नाउन सब लोग। मेरे को खुशबू बताएगी। वेट, खुशबू बताएगी कौन सा वाला रह गया था। बताओ खुशबू, कौन सा रह गया नाउन? हमने 8 नाउन्स लिखे हैं उसमें। कौन सा नाउन हमने नहीं लिखा है? हमने 8 नाउन्स लिखे हैं। पर्सनल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, एम्फेटिक। रह कौन सा गया है? बताओ, पढ़ो ये सारे नाउन्स। रीड देम। Wait, everybody else mute. Let Khushbu read all the nouns. Pronouns. Sorry, nouns नहीं, pronouns. पढ़ो इसको खुशबू, जो बोर्ड पे है उसको पढ़ो। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी। Personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun, possessive pronoun. हाँ, तो हमने, आपने पहले जो हमने लिखे थे, आपने लिखे थे वो अपनी कॉपी में? क्यों नहीं लिखे थे? फिर क्या कर रहे होते हो बैठ के बच्चों आप लोग? अगर आप वीडियो चला रहे थे, नहीं बेटे, उससे पहले मैंने ये सारे लिखे यहाँ पे। ये मत बोलो मुझे, ये तो पहले ही लिखे हैं। इसके बाद हमने इतना डिस्कशन भी किया। डोंट मेक एक्सक्यूजेस लाइक दिस। इफ यू डोंट डू योर वर्क प्रॉपरली यू विल नेवर लर्न। मैं कितनी बार बताऊं? अब बताओ, अगर मैं ये वाली लिस्ट दिखा रही हूँ, इसमें कौन सा प्रोनाउन रह गया है? हाँ, यस, इंटेरोगेटिव तो लिखा हुआ दिख नहीं रहा बेटे आपको। पढ़ो इसको खुशबू। नहीं, 9 ही है अभी। 8, फिर 9th वाला है पोजेसिव प्रोनाउन। लिखा मैंने, सारे तो लिखे हैं, कौन सा नहीं लिखा? हाँ, रेसिप्रोकल अभी हमारे इस वीडियो में भी नहीं आया है कोई रेसिप्रोकल वगैरह। ये 9 प्रोनाउंस हैं एंड दीज आर द वंस विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो पर्सनल प्रोनाउंस, दे पढ़ो इसको। कौन पढ़ेगा? निधि, रीड इट। मैम I, we, you, he, it, they are called person proper noun. पर्सनल Proper प्रॉपर नाउन है ये। रुक जाओ निधि। हाँ, नहीं, अब रुक जाओ आप, 1 मिनट रुक जाओ। अब मुझे आप बताओ, निधि बताएगी प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन एंड व्हाट इज अ प्रोनाउन? बताओ बताओ। प्रॉपर नाउन क्या होता है?
यू कैन नॉट यूज देम इंटरचेंजेबली. ये बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लो. यू कैन नॉट यूज अ प्रॉपर नाउन instead of you, but a pronoun can replace a proper noun. So what is a proper noun? Tell me, Nidhi. Tell me what is a proper noun. अरे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन तो बताओ, होता क्या है प्रॉपर नाउन? अच्छा, म्यूट करो. बताओ मुनीश, प्रॉपर नाउन क्या होता है? मुनीश, टेल मी व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन. Ma'am, a proper noun is a specific name for person, place or thing. Or animal or thing. Okay. Yes, ma'am. Mute. Vishal, give me examples of proper noun. Vishal, give me examples of proper noun. तो सुन ही नहीं रहे हो क्लास में बैठ के कि मैं क्या बोल रही हूँ बेटे. प्रॉपर नाउन. अच्छा, विशाल विल टेल मी. नो, आदर्श म्यूट. हाँ, विशाल, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉपर नाउन एंड अ प्रोनाउन. अभी हमने किया, बताओ क्या डिफरेंस है. प्रॉपर और प्रोनाउन दो अलग अलग वर्ड्स हैं बच्चों. क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ, और कॉमन नाउन क्या होता है? मैम, कॉमन नाउन वो होता है मैम जो हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. पहले तो कॉमन, प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस देखो. प्रोनाउन हम कह रहे हैं जो रिप्लेस करता है नाउन को. वो प्रॉपर नाउन को भी रिप्लेस कर सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी रिप्लेस कर सकता है, वो कलेक्टिव नाउन को भी, काउंटेबल नाउन को भी. प्रोनाउन जो है वो किसी भी टाइप के प्रॉपर नाउन, किसी भी टाइप के नाउन को रिप्लेस कर सकता है. अब वो कैसे रिप्लेस करता है उसके लिए है कि उसमें पहला टाइप हमने बोला पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि बंदों के नामों को रिप्लेस करता है, फीलिंग्स के नाम को भी. तो उसमें ही, शी, इट, दे, वी, ये सब वर्ड्स आएंगे, वो प्रोनाउंस हैं. और प्रॉपर नाउन क्या आएंगे? हम नेम्स, जैसे अभी विशाल ने बिल्कुल करेक्ट बोला, उसने बोला टाइगर है. एनिमल जो है वो कॉमन नाउन होगा, मगर टाइगर स्पेसिफिकली बोल रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन होएगा. पर कभी हम बहुत सारे टाइगर्स हों तो टाइगर कॉमन नाउन बन जाएगा. फिर उसका हमने अगर कोई स्पेशल नाम दिया है कि बब्बर शाह या कुछ भी नाम दिया है, या अगर जैसे डॉग्स हैं उनका हमने कुछ टॉमी, टिंटिन, विंटिन, कुछ भी नाम दिया, या हम लोग हैं, गर्ल्स हैं, उनके नाम दिए हैं, निधि, अंजलि, खुशबू, कुछ भी दिया है. फिर अगर हमारे बॉयज़ हैं उनके नाम दिए हैं, मुनीश, विशाल, नीलेश, तो all these names become proper nouns. They can also be replaced by a personal pronoun. जैसे हरी हमने बोला, that is a proper noun. हरी को हमने ही से रिप्लेस किया. अंजलि बोलेंगे तो उसको शी से रिप्लेस करेंगे. बॉयज़ की अगर हम किसी इमोशन, जैसे हम किसी इमोशन की बात कर रहे हैं, ब्यूटी, तो उसको इट से रिप्लेस करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन से, तो हम इट से रिप्लेस करेंगे. इतना समझ आया सबको? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ओके. तो आज के लिए मैं बस इधर ही रोकती हूँ.
अगली बार हम ये सारे प्रोनाउंस का पूरा वीडियो देख के और फिर कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग सेंटेंसेस में बताओगे, सिर्फ मेरे को ही शी इट दे नहीं चाहिए। फिर आप मेरे को बता दोगे कि अच्छा इसमें माई सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ आएगा, एनीबडी आएगा, समबडी आएगा, ऐसे नहीं। आई वॉन्ट तो सब प्रिपेयर्ड रहना। आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने होंगे यूजिंग दोज प्रोनाउंस। प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन में बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि सिमिलर नाम है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से क्लियरली समझना है। ठीक है निधि? निधि है भी कि चली गई? क्लास खत्म होने से पहले ही गायब हो जाती है, जैसे ही 8:30 हुए वो भाग गई। ओके नेवर माइंड। जो ऐसे करेगा काम उस